আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। ডিজিটাল মিডিয়া ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেসের হাতে এলো এক্সক্লুসিভ ফুটেজ। 2 সপ্তাহেরও বেশি অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর প্রযুক্তি বিষয়ক এবং উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা উত্তরকাশীর নির্মীয়মান টানেলের ভিতরে আটকে থাকা 41 জন শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধার করল। ভিতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়ক শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্ধার কার্যকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। দুর্গম পাহাড় ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সমস্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে সমস্ত শ্রমিকদেরকে উদ্ধার করা হলো। 38 মিনিট 11 সেকেন্ডের রুদ্ধশ্বাস অপারেশন জীবন সফল হয়েছে। এই অপারেশনে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পুষ্কর সিং ধামি পুরো অপারেশন জুড়ে তত্ত্বাবধান করেছেন। এই জয় ভারতের, এই জয় ভারতীয় জনতা পার্টির, এই জয় রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির। আমাদের সাথে টেলিফোন লাইনে জুড়েছেন এই মুহূর্তে বিজেপির কার্যকর্তা ও বঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। আমরা সরাসরি কথা বলে নিয়েছি এবং তার মতামত নিয়েছি। একজন শ্রমিক এইরকম একটা ওইরকম একটা জায়গায় পাহাড়ের মধ্যে আটকে যে ছিল, এবং যে ভারতবর্ষের আজকের যে টেকনোলজি, যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেভাবে তাদেরকে আমরা নিরাপদে বের করে নিয়ে আসতে পারলাম, এটা সারা জাতির গর্ব এটা। এবং এটা সম্ভব হয়েছে খালি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, উনি যেভাবে উনি সমস্ত জায়গায় ভারতবর্ষকে সব জায়গায় খেলাধুলা থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে যেভাবে দেশকে ভারতবর্ষকে সারা পৃথিবীতে 1 নম্বর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে লড়াই চলছে, তারই একটা পার্ট আজকে সারা পৃথিবী দেখলো কিভাবে 41 জন শ্রমিককে আমরা কোনো ক্ষতি ছাড়া একদম সুস্থভাবে তাদেরকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারলাম। এটা ওনার জন্যই সম্ভব। মানে কোনো রকম ক্যাজুয়ালিটি হয়নি, এটা একটা সব থেকে বড় আজকের একটা দিন একটা আপনাদের কাছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সাহায্যে আমরা ওটাকে প্যারালালি আবার একটা হোল তৈরি করে সেখান থেকে এতদিন তো সেই রাস্তা দিয়ে খাওয়ার সমস্ত কিছু পাঠানো হচ্ছিল, এখন সেটাকেও আমরা জয় করেছি এবং তার মধ্যে থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক আছে। আর একটা কথা, এটা কি আপনাদের কাছে কালকে আমাদের মাননীয় অমিত শাহ আসছেন আমাদের কলকাতাতে, হ্যাঁ, এবং জমায়েত হবে, কয়েক লক্ষ মানুষের জনসমাগম হবে এখানে, ঠিক আছে। এবং কালকের পর থেকে লড়াই নতুন মাত্রায় হবে বাংলায়। হ্যাঁ, ওই দিচ্ছে মোদি খাচ্ছে দিদি এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন দুর্নীতিতে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে যে জায়গায় চলে গেছে, সাধারণ মানুষ তাদেরকে মনে প্রাণে চাইছে এই সরকার করি থেকে যাক। এই বিষয়টাকে কাল থেকে নতুন উদ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ লড়াইয়ে নামবে এই চোর সরকারের বিরুদ্ধে। আপনারা কি মনে করছেন যে 1 লক্ষেরও বেশি লোক কালকে আপনাদের জমায়েত হচ্ছে? 1 লক্ষ না, কয়েক লক্ষ। 1 লক্ষ কি বলছেন, কয়েক লক্ষ। কালকে দেখবেন কাল রাজধানী অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, কালকে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের কালকে আওয়াজ শুনবেন আর কি। নবান্নের 14 তলায় বসে মাননীয়া শুনবেন, সাধারণ মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কালকে পায়ে পা মিলাবেন, কলকাতায় আসবেন। কালকে উনি টের পাবেন জনগণের যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, কালকে বুঝতে পারবেন। আজকের এই সাফল্য আপনাদের কাছে কি নতুন করে ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তা রয়েছে তাদের কি নতুন করে অক্সিজেন যোগাবে এই সাফল্য? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তা, আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি এইরকম একটা দলের সঙ্গে আমরা আছি। এই দলের সঙ্গে থেকে সাধারণ মানুষের কে আমরা সার্ভ করতে পারছি, এটা আমাদের কাছে একটা ভীষণ গর্বের বিষয়। এবং আজকের এই যে ঘটনা ঘটলো, এটা নিশ্চয়ই করে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তার কাছে একটা ভীষণ গর্বের দিন। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস থেকে আমি পাপন ব্যানার্জি কথা বলছিলাম। ধন্যবাদ স্যার। নমস্কার। শুভরাত্রি। উদ্ধার হওয়া 41 জন শ্রমিকের সাথে সরাসরি কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। তাদের সাথে প্রায় 30 মিনিট কথা বলেন, আর এই 17 দিনের অভিজ্ঞতার প্রতিটা মুহূর্তর কথা তিনি জানতে চান তাদের কাছ থেকে।
প্রত্যেক শ্রমিকদের সরকারের পক্ষ থেকে 1 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরকাশীর শিলকিরা টানেলে সফল উদ্ধার অভিযানের পর সংবাদ সম্মেলন করা হলো ও মিষ্টিমুখ করা হলো। और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकलते हैं। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, 3 इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर, एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले इन्होंने जो पूछा, देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये कौन सा? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर सबको निकाल लिया गया है, सबको नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3 साढ़े 3 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछने दो। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। क्रिटिकल नहीं, कोई सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर, तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आपका हो गया। एक मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबा के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में राज माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि के लिए? नहीं, सभी समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन वो जानकारी लेते थे
और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। कोई और है आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सब वेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति देंगे। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे सर, मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर्स, और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि सिल्कियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।